हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर। इसमें ज्योग्राफी का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आज हम करेंगे ओशियन सबमरीन रिलीफ एंड वाटर सर्कुलेशन, यानी महासागर अंत समुद्री उच्चवास तथा महासागर जल का परिसंचलन। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों को इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे सीबीएसई वाले बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड वाले बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार वाले बोर्ड के बच्चे हों, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा अगर उनके सिलेबस में ये टॉपिक है तो। साथ में ये यूपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और एसएससी एग्जाम के बच्चों के लिए भी ये वेरिफ अकाउंट के रूप में रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most point here arrive the currents of the Atlantic Ocean. There is a part of here ocean submarine relief and the water circulation. There is the most important currents of the Atlantic. There is the ocean. The north and south equator. There are two western moving currents, the northern and south equatorial current. Between this is equilateral current is a counter-equilateral current, which is a flow from west to east. Right in the figure, and the counter current replace the water removal from to the eastern side of ocean by the north and south equilateral current. There is the most important. The south equilateral current is a bifurcate into the branches near to the Cap D shore Royal and the Brazil. It is a northern branch is joined to the northern equilateral current, and this combined current enter to the Caribbean Sea and the Gulf of the Mexico. Well, the remaining current is passes along the eastern side of the West India of the Antilles and current. There is the most important here. The part of the current which is the enter the Gulf of Mexico and the come out from the Florida Strait and the join to the Antilles current. This combined current is a move along the southeastern coastal of USA. It is known as the Florida current is up to Cape of Hatteras, and beyond to the Cape Hatteras is up to the Grand Banks of the New is a found land. It is called the Gulf Stream from the Grand Bank. The Gulf Stream is deflected the eastward under to the combined influence of the westerlies and the rotation of the Earth. It is a crosses to the Atlantic Ocean is a northern Atlantic drift. There is a most important here. It is a cross. It is a Atlantic Ocean and northern Atlantic drift. There is a most important. Here show the most important current of the Atlantic Ocean. There is the most important is equatorial current, and there is a Sarasota CO and the Canaveral, and there all has a western winds draft. There is a show of the line. There is a currents as a dotted line is a called, and there is a line is a proper is a bomb area. There are current Atlantic Oceans. There is the most important here show in this map. The North Atlantic draft bifurcate into the two branches of which their eastern part of ocean. The northern branch is a continue as the North Atlantic draft and the reach the British allies from to where flow along to coast to the Norway as the Norwegians, and the current is enter to the Atlantic Ocean. The southern branch of flow between the Spain and Azores Island as the called Canaries current, and this Canary current is finally join the northern equilateral current and completes.
The circuit is a northern Atlantic Ocean. Within this circuit lies a Sargasso Sea, which is a fully of large quantity of seaweeds. Is called Sargassums as a brown algae. That's the most important here is a brown algae on the all their sea is weeds. Apart from the cloak bites is a circulation of the current in the northern Antarctica Ocean. There are also two called current. The first is the East Greenland current and the other is a Labrador current, which is a flow from the Arctic Ocean into the Atlantic Oceans. The land border is a current flow along the eastern coast of Canada and the meets there is the Bomb Gulf Stream. And the locality it is a figure and show the confluence of these two is currents. One is a cold and the other is a hot, produce fog around to the new found land and the make it is the most important fishing ground of the world. East Greenland is a current flow between to the ice land and the Greenland and the cool there is a northern Atlantica and drift at the point of their confluence. We have seen earlier that South Equator current is split into two branches near a Cap de Shore Rock and Brazil. The northern is a branch joined to the North Equator current, and whereas the southern branch is a turn south and flow along the eastern coastal to the South America as a Brazil current. At about the 35 degrees south latitude, to the influence of the west lies and the rotation of the earth is a propel. There is a current eastward and the margle will there a western wind is a drift. The near to the caps of the Good Hope there is South Antarctica current is diverted to the northernward as the call Bengulus and current is finally joined to the South Equilateral current, the completing to the circuit. Another called current is known as the is a flank land and current flow along to the south eastern quarter of South America from south to the north. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर के जो है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है अंटार्कटिका महासागर की धाराएं। देखिए अटलांटिका जो महासागर की धाराएं हैं उसका क्या यहाँ पर विशेषता है, तो इसी जो है विषय पे हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं विषमवर्त रेखाओं के उत्तर व दक्षिण दिशाओं में पश्चिम की जो और प्रभावित होने वाली दो धाराएं हैं, एक तो होती है उत्तर एवं दक्षिण जो है विषुववर्तीय धाराएं, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी जो है विषुववर्तीय धाराएं में माना गया है और इन दोनों विषमताओं धाराओं के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर जो है विरोधी विषुववर्तीय धाराएं बहती रहती है। जैसे चित्र में भी हम देखेंगे ये विरुद्ध धाराएं जो उत्तरी और दक्षिण जो है विषुववर्तीय धाराओं द्वारा महासागर के पूर्व में जो है हटाए गए जल की आपूर्ति करती है। ब्राजील के साओ और रैक अंतरीप की जो निकट जो है दक्षिणी विषुववर्तीय धाराएं दो शाखाओं में बढ़ जाती है और इसकी उत्तरी शाखा जो है उत्तरी विषुववर्तीय धाराओं में मिल जाती है और इस सम्मिलित धारा का जो है कुछ भाग कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तथा शेष भाग जो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के पूर्व किनारों पर जो है अंटार्कटिक धारा के रूप में बहती हुई गुजरती है। तो शाखा जो है मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है और वह फ्लोरिडा और जलमरु मध्य से निकट जो है अंटार्कटिका की धारा में मिल जाती है और यह जो है सम्मिलित धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के सहारे बहने लग जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसे हम अट्रेटस अंतरिप या जो फ्लोरिडा धारा भी कहते हैं। हेटेरस आंतरियो और न्यू फ्लैंडोलैंड में समीप स्थित ग्रैंड बैंक तो इस धारा के जो है गल्फ स्ट्रीम कहते हैं और जो ग्रैंड बैंक के गल्फ में स्ट्रीम जो है पछुआ पवने और जो है पूर्वी की घुमन गति की जो है सम्मिलित प्रभाव के कारण पूर्व की ओर ये मुड़ जाती है। यह जो है अटलांटिका महासागर के पूर्व की ओर बहते हुए पार करती है और इसे उत्तर जो है अंटार्कटिका अपवाह भी कहते हैं, यानी इसको जो है अटलांटिका अपवाह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया, यानी मैप में आप साफ समझ सकते हो कि अटलांटिका प्रवाह की क्या विशेषताओं के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है पूरा मैप दिखाना संभव नहीं है, लेकिन जो आपके समक्ष है वो अमेरिका का जो है विशिष्ट दिखाया गया है, जिसमें अंटार्कटिका महासागर की धाराएं दिखाई गई है। आपको जो है एरो के रूप में दिख रहा होगा वो जो है
जो शांत धाराएं हैं और उष्ण धाराएं जो है थोड़ी गहरी रंग की दिखाई गई है। तो इस प्रकार जो अंटार्कटिका महासागर की धाराएं जो है चलती रहती है और पूरे विश्व को जो है प्रभावित करती रहती है। उत्तरी अंटार्कटिका अपवाह जो है यहाँ महासागर के पूर्वी भाग में पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाता है और इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी अंटार्कटिका पर जो अपवाह के रूप में बहती ही रहती है और यह ब्रिटिश द्वीप समूह पहुंचकर वहां से जो है नावे के तट के साथ बहते हुए ये नावे धारा के रूप में जानी जाती है। वहां से ये जो है अंटार्कटिका महासागर में प्रवेश कर जाती है और दक्षिण शाखा स्पेन तथा एजोरस द्वीप के मध्य से दक्षिण की ओर ये बहती रहती है। यहाँ इसे जो है किनारी धारा भी कहते हैं, यानी यहाँ पर जैसे ये प्रवेश करती है इसको किनारी धारा के नाम से जाना जाता है और यह एक ठंडी जलधारा है। किनारी धारा अंत में उत्तरी विषुववर्तीय धाराओं से मिल जाती है और उत्तरी जो है अंटार्कटिका महासागर में धाराओं के चक्र के बीच में सरगोसो समुद्र के शांत क्षेत्र है जो अत्यधिक जो है समुद्री शैवालों से भरा हुआ होता है, यानी समुद्री शैवाल जो होते हैं पूरे ही भरे होते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ जो है काफ़ी ग्रीन एल्गे पाया जाता है और एल्गे के कारण ही समुद्र के जो है काफ़ी जो है इसका अलग रंग दिखाई देता है। ये समुद्री शैवाल जो ऐसे भूरे रंग के होते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो शैवाल जो होंगे पूरे भूरे रंग के होंगे। आप लोगों ने जो है शैवाल ग्रीन रंग के देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो समुद्री शैवाल जो है भूरे रंग के होते हैं और सरगेसम नाम से भी जाने जाते हैं। यानी इस भूरे के कारण जो है सरगेसम के नाम से जो है ये जो है समुद्र जाना जाता है, जो कि काफ़ी इसको विशेषताओं को प्रकट करती है। उत्तरी जो है अंटार्कटिका महासागर में धाराओं के दक्षिणवर्तीय परिसंचरण के अतिरिक्त दो ठंडी धाराएं भी इस महासागर में बहती है और ये जो है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा तथा लैब्राडोर धारा है और ये धाराएं अंटार्कटिका महासागर से अंटार्कटिका महासागर में बहती है। देखिए अंटार्कटिका महासागर से अंटार्कटिका महासागर में जो है इसकी भाव दिशा है। लैब्राडोर धारा जो है कनाडा के पूर्वी तट पर दक्षिण की ओर बहती हुई गर्म जो है गल्फ स्ट्रीम धारा से मिलती है। हम चित्र में भी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं विभिन्न तापमान वाली इस दो धाराओं को एक ठंडी तथा दूसरी गर्म होती है को संगम को जो है न्यू फलेलैंड के चारों ओर कोहरे का निर्माण होती है और इस संसार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रह क्षेत्र माना बनता है। पूर्व जो है ग्रीनलैंड धारा जो है आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच बहती है तथा ये संगम स्थल पर उत्तरी जो अंटार्कटिका अपवाह के तापमान को कम कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है अपना स्थान बनाती है। यानी देखा जाए तो दक्षिण जो है विषुववर्तीय धाराएं ब्राजील के साओ रोको अंतरपी के निकट दो शाखाओं में ये बढ़ जाती है और इसकी उत्तरी शाखा जो है उत्तरी विषुववर्तीय धाराओं से मिल जाती है और दक्षिण शाखा जो है दक्षिण की ओर मुड़कर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ बहती रहती है और इसे हम ब्राज़ील धारा भी कहते हैं। लगभग जो है 35 दक्षिण अक्षांश पर ब्राज़ील धारा को पछुआ पवन तथा पूर्वी की जो है घूर्णन गति जो है पूर्व की ओर मोड़ देती है, जहां यह पश्चिम पवन पर जो प्रवाह में मिल जाता है और आशा अंतरीप के निकट दक्षिण अंटार्कटिका धारा उत्तर की ओर जो है मुड़ जाती है। यह एक ठंडी जल धारा है और इसे जो है बेंगुएला धारा भी कहते हैं। अंत में यह दक्षिण जो विषमवर्तीय धाराओं से मिलकर धाराओं के चक्र को पूरा भी करती है। एक और ठंडी जलधारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जिसे हम फॉकलैंड धारा भी कहते हैं। तो ये काफ़ी विशिष्ट धाराओं का जो है यहाँ पर संचलन करती है। और नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, अ current of the Pacific Ocean. There is a part of the ocean submarine and the relief and the water circulation chapter. There are currents of the Pacific Ocean. It may be observed that is some bordered circular system is a clockwise in their northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. There is a most important point here. A clockwise is the northern hemisphere and anti-clockwise the southern hemisphere are the present in the Pacific Ocean also. And the show here map. Here show the map here Pacific Oceans. The North Pacific current here show and North Equator is here. And current is a call and bomb here show in this time to time of change this map. That is the most important map. The show the here a Pacific current is a call and bomb. In the equilateral belt of the Pacific Oceans, two stream equilaterals
currents flow across the ocean from the Central America coastal. Between these two, the northern equatorial current and the southern equatorial currents flow a current. Equilateral current is a move west to the east. The North Equatorial Current is a turn northward and the flow along to the Philippines Island and Turbans and Japan to form of the warm Kuroshio and Kuroshio current. From to southeast is the coastal of Japan. The current comes under to the influence of the western lies and flow right across the oceans and the North Pacific current. That is the most important. After the reaching there is the west coast of North America. It is a bifurcate and into the branches. The northern branch flow anti-clockwise. There is a most important here. There are west coast of their North America as bifurcate into the two branches. There is the flow anti-clockwise along the coastal British Columbia and Alaska and known as the Alaska current. There is a British is a Columbia and Alaska and there is known as the Alaska current. The warm water of this current is help to keep the Alaska coastal ice free in the winter. The other branch of the North Pacific here current are the moving to the southward along to the coastal of the California as the called California current. It is eventually they are joined to the northern equilateral current to be complete is a circuit. In the northern part of the Pacific Ocean, two cold currents also flow, and these are the Oya-Siwa current and the Ocotillo current. The cold Oya-Siwa current and flow along to coastal of the Kamchatka Peninsula. Another cold current is a Ocotillo current flow the past Sakhalin in the merges in the Oka-Siwa current near the is a Hokkaido Island. It is a later merge with the Kuroshio current and the sink beneath there is a warm water of the North Pacific current. And the next year, in the south of Pacific Ocean, there are south equatorial currents flow toward to the west and turn to southward as the East Australian current. It is there is a meet or near Tasmania and the called South Pacific current, which is a flow from the west to the east. On the reaching the southwest coastal of South America, it is a turn northward as they are called Peru current. It then to meet the south equatorial current and complete the circuit. The cold water of the Peru current is partly responsible for making the coastal of North Chile and the West Peru and the very scantily rainfall. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रशांत महासागर की धाराएं। देखिए प्रशांत महासागर की धाराओं का अपना एक विशेष स्थान है और कई मायने में ये जानना जरूरी भी है। कहते हैं ये देखा जा सकता है कि प्रशांत महासागर में भी धाराओं का एक विविध चक्रीय तंत्र पाया जाता है जो कि उत्तरी जो है गोलार्ध में दक्षिणवर्त घड़ी की सुई की दिशा में करती है। यानी देखा जाए तो क्लॉकवाइज जो है अपनी ये रोटेशन करती है, वह दक्षिण गोलार्ध में जो है वामवर्त यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। वामवर्त का मतलब यहाँ पर है कि जो है सुई के उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, और गोलार्ध में दक्षिणी वर्त का मतलब होता है सुई की दिशा के रिगार्डिंग। तो ये कई मायने में इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर प्रशांत महासागर के विषमवर्तीय भागों में दो जो है विषमवर्तीय धाराएं मध्य अमेरिका के तट से महासागर के आर पार बहती रहती है और इन दोनों उत्तरी विषमवर्तीय धारा तथा दक्षिण विषमवर्तीय धारा के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर एक विरोधी विषमवर्तीय धारा जो है बहती रहती है। उत्तरी विषमवर्तीय धारा उत्तर की ओर मुड़ती है और क्यूरोशिवो धारा के नाम से जो फिलीपींस द्वीप समूह यानी ताइवान तथा जापान के तटों के साथ साथ बहती रहती है। जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर यह धारा जो है पछुआ पवनों की चपेट में आकर महासागर के आर पार पश्चिम से पूर्व की दिशा में उत्तरी जो है प्रशांत धारा के नाम से बहती है। यानी ये जो है प्रशांत यानी उत्तरी जो है प्रशांत धारा के नाम से जो है इसको पुकारा जाता है।
उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर यह धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। यानी देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंच के ये दो भागों में बढ़ती है। इसकी उत्तरी शाखा जो होती है ब्रिटिश कोलंबिया के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है अलास्का के तटों के साथ जो है वामवर्ती दिशा में बहती है तथा अलास्का धारा के नाम से भी जानी जाती है। और इस धारा को जो है गर्म जल शीत ऋतु में अलास्का तट के जो है बर्फ मुक्त रखता है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा की दूसरी शाखा जो है कैलिफोर्निया के तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है और यह ठंडी जलधाराएं और इसे जो कैलिफोर्निया धारा भी कहते हैं, यानी कैलिफोर्निया की तरफ बहती है इसलिए इसका नाम जो है कैलिफोर्निया धारा के नाम से भी जाना जाता है। अंत में ये धारा उत्तरी विषुववर्तीय धारा में मिलकर अपना पूरा चक्र पूरा कर लेती है। प्रशांत महासागर के जो है उत्तरी भाग में दो ठंडी जलधाराएं बहती है। ये जो है ओहायो धारा और जो है दूसरा जो है ओखोटस्क धारा, यानी दोनों धाराएं जो है काफी इंपॉर्टेंट रहती है। कहते ठंडी धारा ओहायो जो है धारा जो है कम चटका प्रायद्वीप के तट के साथ ये बहती रहती है। दूसरी ठंडी धारा जो है ओखोटस्क धारा है जो है सखालिन के पास बहती हुई होक्काइडो द्वीप के निकट ओहायो धारा में मिल जाती है। ओहायो धारा अंत में जो है कुरोशियो धारा में मिल जाता है और उत्तरी प्रशांत महासागर धारा से गर्म जला के नीचे डूब जाती है। यहाँ पर जो है नाम थोड़ा कठिन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है जापान के साइड के जो है नाम है यहाँ दिया गया है। कुरोशियो धारा, ओहा धारा, ऐसे ऐसे नाम जो है आपको नेपाल के साइड या जापान में ही देखने को मिलता है। तो ये धारा जो है अपनी दिशाओं को जो है इन्हीं भागों में जो है अपने आप को विस्तृत करती है। यहाँ पर आप एक जो है मैप के चित्र भी देख सकते हो जहाँ प्रशांत महासागर की धाराओं को यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो है एरो आपको दिखेगा और इन्हीं और एरो से जो है ठंडी और जो है उष्ण ऋतुओं का जो है विशेष रूप से यहाँ वर्णन किया गया है और बताने की कोशिश किया गया है कि ये धाराओं का जो है किस तरह से जो है इसकी दिशा जो है बदलेगी। देखा जाए तो दक्षिणी जो है प्रशांत महासागर में दक्षिण जो है विषुववर्ती धारा पूर्व से पश्चिम की ओर जो है बहती ही रहती है और पूर्वी जो है ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से दक्षिण की ओर ये मुड़ जाती है। आगे चल के ये जो है तस्मानिया के निकट ठंडी दक्षिण जो है प्रशांत महासागर धारा में ये मिल जाता है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कहते हैं दक्षिण अमेरिका के दक्षिण जो है पश्चिमी तट पर पहुंचकर यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और इसे पेरू धारा भी कहते हैं और यह एक ठंडी जलधारा है और अंत में यह दक्षिण विषुववर्ती धारा में मिलकर एक चक्र पूरा कर लेती है। पेरू धारा जो है ठंडा जल ही निचली पेरू के तटों को जो है वर्षाविहीन बनाने के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी होती है। यानी देखा जाए तो पेरू धारा का जो है ठंडा जल चिली एवं पेरू के तटों को वर्षाविहीन बनाने के लिए काफी हद तक जो है उत्तरदायी होता है। The next topic is the currents of the Indian Ocean. There is the most important here, Indian Ocean. The pattern of circulation of the current is the Indian Ocean differ from the general pattern of the circulation in the Antarctica Oceans and the Pacific Ocean. And this is because Indian Ocean is blocked by the continental masses in the north. The general pattern of the circulation in the southern section of the Indian Ocean is anti-clockwise as that of other oceans, but in the northern section there is a clear traversal of the current is a winter and summer, and these are completely under the influence of the seasonal change of the monsoon winds. So there is a clear reversal of the current is the winters and summer season and southwestward during to northeast monsoon, and where a northeastward during to the southwest monsoon and variable during to transition season. Transition season is the most important for the currently of the Indian Ocean. During the winters is Sri Lanka divided to the current of the Ariana Sea from to the those of the Bay of Bengal. The North Equator current flow the westward just south to the Sri Lanka with the disconnected to counter equilateral current flow between it and the south equator current. At the time in the northern section, the whole of Bay of Bengal and Arabian Sea is under to the influence of the northeast monsoon. The northeast monsoon dry water of Bay of Bengal and the Arabian Sea is the best water to circulate in the anti-clockwise direction,
and this current is known as the northeast monsoon drift. Here show the map the current of the Indian Ocean winter. There is season of winter, but here a show of arrow. Dot arrow is a cold current show here, and the warm current show is a directly arrow. And there is a direction show the arrow. There is a most important map here show in this screen. In a summer, the northern sections come under the influence of southwest monsoon, and there is a easterly movement of water in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, and produce a cloak by circulation. And this current is known as the southwest monsoon drift. In the general, their summer currents are more regular than those of winter. Here show the map the current of the Indian Ocean in a summer. There is a show of summer. There is a most important. There is a dotted line is a show the called current, and the line arrow here is a bomb current. There is a most important that some difference on the winter and summer here. A map. There is a currently Indian Ocean. In the southern Indian Ocean, the south equatorial current is strengthened by there is a corresponding current of the Pacific Oceans. Flow from the east to the west, it turns southward along the coastal of the Mesozoic and Africa. A part of this is current which flow between to the mainland and the Madagascar island is known as the Mesozoic current. After the confluence of these two, current is called to the Angola current. It then to turn to easternward and the Mughal will their west wind drift. The west wind drift is a flow across the ocean to the west east direction in the higher latitude to the reach their southern tip of the Australia. A branch of this stems is turned northern to flow along the western coast of Australia as a called West Australian current. West Australian current is later joined to the south equatorial current to be complete the circuit. There is a most important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अगला पॉइंट जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट है वो है हिंद महासागर धाराएं। देखिए ये इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर जो है धाराएं काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं हिंद महासागर की धाराओं को जो है परिसंचलन का प्रतिरूप और अंटार्कटिका महासागर एवं प्रशांत महासागर की धाराओं से थोड़ा भिन्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर की धाराएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इसकी दिशाएं एक विशेष बातों पर निर्भर करता है। कहते हैं क्योंकि हिंद महासागर उत्तर पूर्व स्थल से घिरा हुआ है। अगर देखा जाए तो इसको जो है ये पूर्व में जो है महासागर जो है पूर्वोत्तर स्थल जो है घिरे हुए होते हैं और इसके दक्षिणी भाग में धाराओं के जो है परिसंचलन का सामान्य प्रतिरूप जो है वामवर्ती होने के कारण ऐसा होता है, जैसा कि अन्य महासागरों में भी है। लेकिन इसके उत्तरी धाराओं में जो है शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में स्पष्ट रूप से अपनी दिशाएं पुण्यवर्त बदलती रहती है, यानी इसकी दिशाएं जो है समय समय पर बदलती रहती है और ये धाराएं जो है पूर्वतः बदलते हुए जो है मानसूनी मौसम के प्रभाव में ऐसा होता है और इसलिए शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में धाराएं उलट जाती है या धाराएं जो है विपरीत दिशाओं में बहने लग जाती है। अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून के दौरान इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और दक्षिण पश्चिम जो है मानसून के दौरान उत्तर पूर्व की ओर तथा संक्रमण काल में जो है अस्थिर धारा के रूप में होता है। यानी देखा जाए तो संक्रमण काल में जो है अस्थिर धाराओं के रूप में ये विस्तृत होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे होगे मैप, यहाँ पर हिंद महासागर की धाराओं को जो है शीत ऋतु में इसका क्या प्रभाव होता है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है तीर की जो है व्हाइट तीर जो है शीत ऋतु का परिचालक है और जो आपको डार्क तीर दिख रहा होगा वो उष्ण धारा के जो है परिचालक है। आप देख सकते हो कि भारत पे किस क्षेत्र पे जो है कैसा प्रभाव होगा। यहाँ पर अगर ऊपर आप देखोगे तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी जो है धाराएं उपवाह जो दिखेगा जो कि काफ़ी विशेषताओं को यहाँ दर्शाने के लिए ये मैप जो है काफ़ी पर्याप्त है। शीत ऋतु में श्रीलंका बंगाल की खाड़ी की धाराओं को जो है अरब सागर से धाराओं को जो है अलग कर देती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शीत ऋतु में श्रीलंका जो है बंगाल की खाड़ी की धाराओं को अरब सागर से धाराओं को अलग कर देती है और श्रीलंका के ठीक दक्षिण में उत्तरी जो है विषमवर्ती धाराएं और दक्षिण जो है विषमवर्ती धारा पश्चिम की ओर बहती है।
उत्तरी विषमवर्तीय धाराओं और दक्षिण विषमवर्ती धाराओं के मध्य एक विरुद्ध विषमवर्ती धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती चली जाती है और इस समय इसके उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जल को उत्तरी पूर्व मानसून प्रभावित करते हैं, यानी पूर्वी मानसून काफ़ी इसको प्रभावित करता है तथा उन्हें वामवर्ती दिशा में प्रभाव के लिए प्रेरित भी करता है और इस जलधाराओं को उत्तर पूर्वी मानसून अपवाह कहते हैं, यानी इसका नाम दिया गया है उत्तर पूर्वी मानसूनी अपवाह। यहाँ पर आप मैप देख रहे होंगे, ये हिंद महासागर की धाराएं हैं जो कि उष्ण के समय दिखाया गया, यानी गर्म दिनों में इसका प्रभाव कैसा होता है। आप यहाँ पर चित्रों से साफ देख सकते हो कि शीत ऋतु में इसकी धाराएं किस प्रकार अपना रुख बदल लेती है और गर्मी के समय इसका रुख कैसा होता है। तो यहाँ पर अरब सागर भी दिख रहा होगा आपको, मानसूनी के एरो यहाँ पर दिखाया गया है। जो ब्लैक एरो है वो उष्ण धाराओं को दर्शाता है और जो सिर्फ व्हाइट एरो है वो शीत धाराओं को दर्शाता है और इसकी एरो जिस साइड बनी हुई है इसकी पवनों की धारा इसी तरफ आने को संकेत कर रही है। तो ये कहते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैप दिखा रहा है और मैप से समझना काफ़ी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में वही उत्तरी भाग दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभाव में आ जाती है। कहते हैं बंगाल की खाड़ी एक अरब सागर का जल पूर्व की ओर बहने लगता है और इस समय जल का परिसंचलन दक्षिणवर्ती या घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में होती रहती है और इस धारा को दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह भी कहते हैं। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु की धाराएं शीत ऋतु की धाराओं से अधिक नियमित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह कहते हैं और सामान्य ग्रीष्म ऋतु की धाराएं शीत ऋतु की धाराओं से अधिक नियमित होती है, जो कि इसकी विशेषताओं को काफ़ी दर्शाता है। हिंद महासागर के दक्षिण भाग में विषमवर्ती धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती रहती है और अफ्रीका के मेजोविक तट के निकट यह धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और इस धारा का एक भाग अफ्रीका के मुख्य भूमि और मेडागास्कर द्वीप के मध्य बहता है और इसे हम गैर-मेजोविक धारा भी कहते हैं, यानी इसका मेडागास्कर द्वीप से मध्य बहता है और इसे गैर-मेजोविक धारा कहते हैं और दक्षिण की ओर बढ़ने पर यह दक्षिणी विषमवर्ती धारा की उस शाखाओं से मिल जाती है जो मेडागास्कर के तट के साथ बहती है। इस संगम के बाद इसे अगुहाल्स धारा कहते हैं। इसके बाद यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम पवन अपवाह में मिल जाना इसकी स्वाभाविकता को दर्शाता है। पश्चिम पवन वह उच्च अक्षांशों में महासागर की आर पार पश्चिम से पूर्व दिशा में बहता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक पहुंचता है और इस धारा की एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के साथ साथ बहने लगती है और इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा भी कहते हैं और यह ठंडी जलधाराएं हैं। अंत में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा दक्षिणी विषमवर्ती धारा से मिलकर एक चक्र पूरा कर लेती है और जैसे एक चक्र पूरा करती है इसकी प्रक्रिया वहीं पे खत्म हो जाती है। The most important topic here are effect of the ocean current. There is a most important topic arrive here, effect of the ocean current. What is the effect here? The first effect here is the influence on climate. There is a most important here, or influence on the climate. Ocean currents closely influence a distribution of the temperature, pressure, wind and precipitation, which is directly and indirectly influence of economic and society of people, especially those living in the coastal region. And some of the important effect of the ocean current are flowing. There is the most important. Currents move from the warm temperature area to the colder temperature area and vice versa, as they are moved from one place to another, thereby or the attempt of modify the temperature. The temperature of the mass of water affect the temperature of the air above it. Therefore, the oceans current that move from equilateral region to the colder altitude arise their temperature of the air in the area into which it is moves. For example, warm North Antarctica is a draft which is the flow to northward to the West European coastal and help to the keep the coastal air. There is a Great Britain and Norway free of ice in a winter too. The effect of the oceans currents become more clear if you compare to the winter condition of the British
is less with that of the northeast coastal of Canada, situated on the same altitude. Since the northeast is a coastal in Canada, come under to the influence of cold Labrador current. It's remain ice bound in during this and the winter time. When the cold and warm currents meet, they produce a mist and fog. There is a most important cold and warm current meet the produce a mist and fog. For example, near a Newfoundland is a warm Gulf Stream meet a Labrador's current and produce a fog. And they also create a condition for the storm and the hurricanes in the Newfoundland to the typhoon in the Japan are the result of meeting of warm and cold current. There is the most important. And important here, the next point, influence on marine life. There is a most important effect here. The temperature has a great influence on the marine life. It determines its types of flora and fauna. The area where is a warm and cold current meet among, there is a most important fishing ground of the world. The ocean's movement in their form of current help in the is a dispersal of marine life. Dispersal is a marine life. There is the most important. And the next here, influence on trade. There is also important ocean current influence the trade. The portal there have rows of the high latitudes which are affected by the warm currents are ice free and open for trade all the year round. For example, the portals of the northwest Europe remain open throughout the year while the port of Quebec and the Canada get a frozen in the winter. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट महासागरीय धाराओं के प्रभाव। देखिए महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या होती है। अगर हम देखें यहाँ पर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहली प्रभाव तो यही आता है जलवायु पर प्रभाव। देखिए महासागर धाराओं का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है तो पड़ता है क्लाइमेट पे यानी जलवायु पे। कहते हैं महासागरीय धाराएं जो है तापमान दाब वायु और वर्षण के वितरण को नज़दीकों से प्रभावित करती है। तो जनरल सी बात है कि अगर धाराएं होगी महासागरीय जलवायु होगी तो ये तापमान दाब वायु और वर्षण के वितरणों को काफ़ी प्रभावित करेगी जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समाज एवं अर्थव्यवस्था विशेषताएं तटीय प्रदेश में रहने वाले पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सागरीय धाराओं में कुछ प्रमुख जो प्रभाव इस प्रकार भी देखा जा सकता है। देखा जाए तो जल धाराएं जो है अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर तथा इसके विपरीत कम तापमान क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती रहती है। जब ये धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है तो ये उन क्षेत्रों के तापमान को काफ़ी प्रभावित भी करती है। किसी भी जलराशि के तापमान का प्रभाव उसके ऊपर की वायु पर सदैव पड़ता ही पड़ता है और इसी प्रकार जो विषमवर्ती क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों वाले ठंडे क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराएं उन क्षेत्रों की वायु के तापमान को काफ़ी बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखिए कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उदाहरण भी क्योंकि उदाहरण से हम ये बात जान जाएंगे कि गर्म उत्तरी अंटार्कटिका अपवाह जो उत्तर की ओर यूरोप से के पश्चिम तट की ओर बहती है यह ब्रिटेन और नॉर्वे के तट पर जो है शीत ऋतु में भी बर्फ नहीं जमने देती है। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन और नॉर्वे के तट पर जो है शीत ऋतु में भी यहाँ पर बर्फ नहीं जमती है। जल धाराओं का जो है जलवायु पर प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाता है तब आप जो है सामान्य जो अक्षांशों पर इस त्रिविटिस द्वीप समूह के शीत ऋतु की तुलना में कनाडा के उत्तरी पूर्वी तट की जो है शीत ऋतु से कर सकती हो। कनाडा का उत्तरी पूर्वी तट जो है लेब्राडोर की ठंडी धाराओं के प्रभाव में आ जाता है और इसलिए यह शीत ऋतु में बर्फ से काफ़ी ढका हुआ नजर आता है यानी ये बर्फ से जो है पूरी तरह से ढक जाता है। जब ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है तो ये कोहरा उत्पन्न करती है। ये तो आपको पता ही होगा कि कोहरा कैसे बनते हैं। तो कोहरा जो बनने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में जब मिलती है तो कोहरे का निर्माण होती है। उदाहरण के लिए जब गल्फ स्ट्रीम धारा जो न्यूफाउंडलैंड में निकट जो है लेब्राडोर की धाराओं से मिलती है तो कोहरा उत्पन्न होना एक स्वाभाविक बात रहेगा। ये तूफान आने के लिए भी अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। न्यूफाउंडलैंड में जो है हरिकेन और जापान में टाइफून आने का कारण शायद गर्म और ठंडी जो है धाराओं का जो है मिलन भी हो सकती है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे अधिक अगर इन उतार चढ़ाव का सबसे अधिक पड़ता भी है तो मैरीन लाइफ पे पड़ता है, यानी जो है समुद्री जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है ये उतार चढ़ाव की जो है सिचुएशन। कहते हैं तापमान का समुद्री जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये समुद्री वनस्पति एवं जीव जंतुओं के प्रकार को जो है निर्धारित करती है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। वह विश्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र होते हैं। धाराओं के रूप में महासागरीय जल के संचलन के कारण समुद्री जीव जंतु पूरे महासागर में फैल जाते हैं और फैलने से ही जो है उनका बचाव भी हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष व्यापार पर प्रभाव। देखिए, कहते हैं अगर हम धाराओं की बात करें, शरद गर्म की बात करें, और ये धाराएं जो होती है कहते हैं सिर्फ ये जीव जंतुओं पर ही प्रभाव नहीं डालते हैं, मैरीन लाइफ पे ही प्रभाव नहीं डालते हैं, ये इंसानों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यानी उनके व्यापार पर काफ़ी प्रभाव डालता है। जलधाराओं का व्यापार पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर अक्षांशों में स्थित जो है पत्यानों और बंदरगाहों में जो गर्म जलधाराओं का प्रभाव में होते हैं बर्फ नहीं जमती है वहाँ, यानी देखा जाए तो गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण वहाँ पर बर्फ नहीं जमती है और वहाँ पूरे वर्ष व्यापारिक गतिविधियाँ चलती ही रहती है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम यूरोप के पतन पूरे वर्ष खुले रहते हैं, जबकि कनाडा का क्विबेक पतन शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है।